कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. चैप्टर 2 टेक्स्ट 47, अध्याय 2 श्लोक 47 पहली पंक्ति. Those who have gone through Gita, they know all these 18 chapters and every shlok, every text is so powerful indeed. Yeah. It can transform you. Yeah. Okay. Now, ladies and gentlemen, boys and girls, recently, just today itself, I had posted one clip regarding what drains us. Is it the physical work or the mental work? And we all know that it's the mental work that drains us more because it's more stressing. Yeah. Now, see, it is because our lifestyle has become that intellectual, more of thinking, less of doing, isn't it so? If you ask me, it is not about physical work or mental work. It's about being detached with whatever you do or whatever you think. Yeah, but definitely when you are into doing, we're into physical work, from there the jump becomes very easy. This is my personal experience. Yeah, it may vary from person to person. That's fine, no problem. Yeah, absolutely fine. So in my book, A Tonic for Great Life, also I have highlighted very much about 4 kinds of intelligences. I have mentioned about in my own way, but in general way, in general terms, like physical intelligence, it's about doing. Yeah, intelligence quotient, the mental part, it's about thinking, and emotional intelligence about feeling, and spiritual intelligence, that is the 4th part, is about being. Yeah, it's about being. Now this shlok of karmanyavadikaraste ma phaleshu kadachana, it talks about how one can get detached from the outcomes of your work, that is basically the fruit, and get completely engrossed, committed to the work in hand, the task in hand. Yeah. Now, who can do it? Who can do it? Only the person who has dropped the doership. When he gets into non-doership, कर्ता का भाव जिसका ख़त्म हो जाता है या धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, वैसे वैसे बड़े मज़े की बात है, उसके काम में जो प्योरिटी है, वो जो काम करता है उसमें उसको बहुत मज़ा आता है. The doership drops, and the work, the purity of work, the purpose, everything, the work, the quality, it increases. ये ऐसे है. हाँ, ये मज़े की बात है. Because doership मतलब क्या है? एक अहम कि मैं, और जब तक मैं है तब तक भय है, isn't it? तो insecurities कि मैं क्या हूँ. The moment when you realize that you are just a dust particle of this infinite eternal existence, yeah, you are vibrating at the frequency of love, compassion, peace, whatever you call it, as you perceive, that's fine. And then you see the interconnectedness. When you see there is no dvait, there is no division, there is no duality, then whether you are thinking, whether you are doing, whether you are feeling, you are all those 3, you are something which is beyond all those things. Yeah, whatever you call it, non-judgmental observer, or call it sakshi bhav, whatever you call it. So once you get detached, now detachment कई बार लोगों को यही लगता है कि यार डिटैचमेंट, डिस्पैशन, मतलब फिर वो काम कैसे कर पाएगा, उसका काम कर ही नहीं पाएगा. या ही विल बिकम मोर लाइक लेथार्जिक या कॉम्प्लासेंसी में चला जाएगा. ऐसा नहीं. जैसा अभी मैंने कहा कि उसका जो कर्ता का भाव है जब गिर जाता है तो एक्चुअली काम पड़ जाता है. कर्ता का भाव, कर्ता हमेशा फल की चिंता करता है, वो फल की तरफ देखता है, आउटकम की तरफ देखता है. भाई सीधी सी बात है, अभी हाथ में काम और उसका जो फल आने वाला है कभी आएगा, फ्रॉम हियर टू देयर, दैट इज़ बेसिकली द टाइम. या फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट हैपनिंग, उसका रिजल्ट. तो जब मेरी एनर्जी यहीं अगर विभाजित हो गई है, इफ आई एम डिवाइडेड राइट हियर राइट नाउ, one eye here and another eye is on the outcome, and I won't be able to give 100% to the work in hand. As simple as that. So for example, a trainer है या पब्लिक स्पीकर है, वो अगर 1 घंटे का उसको समय मिला है और सामने 50-100 लोग बैठे हुए और सोचता है कि 1 घंटे के बाद में लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो यार वो कभी न्याय कर ही नहीं सकता है. He has to prepare, he has to anticipate the outcomes and all those things. जो प्रिपरेशन जब प्रिपरेशन होने के बाद जो प्रेजेंटेशन में आता है तो उसने सब साइड में रखना चाहिए, and then he should be very spontaneous and should actually flow with the flow. That's what, when you flow with the nature, you become the flower of the nature. Yeah, okay.
So the point is that spiritual intelligence called beingness, called beingness. तो आपने सुना होगा कि जो ज़ेन मास्टर्स, ये कई मॉन्क्स है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स है, अपने डिसाइपल को वो कुछ काम असाइन करते थे करने का, फिजिकल वर्क, कि भाई पानी भरो, घड़े बनाओ, मिट्टी जो कुम्हार बनाते हैं, कुछ भी फिजिकल वर्क करो, लकड़ी तोड़ के आओ, राइट। फिर मार्शल आर्ट्स करते थे, सेल्फ डिफेंस, किसी को पीटने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए। फिर वो जानवरों से भी सीखते थे अलग अलग फाइट्स, नो। तो दिस वॉज सेल्फ डिफेंस, या यू मस्ट हैव सीन इन मेनी मूवीज। बट बेसिकली दे हैज टू गेट इनटू मोर ऑफ फिजिकल वर्क। उसका मतलब यही था, जो मुझे समझ में आता है कि हमारे जो थिंकिंग पैटर्न्स, जो हमारे, हम बहुत ज़्यादा जो सोचते हैं, और सोचने की वजह से जो साइकोसोमैटिक बीमारियाँ होती है, वे गेट स्टक इनटू दैट। तो उससे निकल के अभी हम डूइंग पे आना है, डूइंग, बेसिकली डूइंग विदाउट डूअरशिप। वो धीरे धीरे डूअरशिप फिर ख़त्म हो जाएगी, बट पहले डूइंग में तो आ जाओ। वो थिंकिंग, ऐसा नहीं है कि थिंकिंग गलत है, नहीं। थिंकिंग इज़ लाइक स्टार्ट बटन, एक दिशा है। आपने व्हीकल स्टार्ट कर लिया, बार बार उसको स्टार्ट नहीं करोगे, चाबी नहीं घुमाओगे। या अलार्म, घड़ी का, आपको उठने के लिए अब बार बार अलार्म बजेगा तो आप डेफिनेटली आप बहुत डिस्टर्ब होंगे, मतलब पॉसिबल ही नहीं। इट जस्ट लाइक रिमाइंडर, इंडिकेशन, बिकॉज थॉट शुड लीड टू एक्शन। इसीलिए हम कहते हैं कॉर्पोरेट में एक्शन प्लान, राइट। हम लोग करते क्या है, पहले हम प्रिपरेशन करो, प्लानिंग करो, प्रॉस एंड कॉन्स देखो, ठीक है, रूट कॉज एनालिसिस देखो, सब दिशा से सोचो, पर अभी करो, करने से ही होगा, राइट। करो, ओके। इन बिटवीन आपको लगता है कि हाँ ये जा रहा है, एक्सपीरियंस है, फिर उसको आप रेक्टिफाई करो, टेक ए ब्रेक, बट करो, दैट्स व्हाट, नो। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस आई वॉज talking about in my earlier video, where my son also spoke about love them anyways, and we were talking about mental work versus physical work. So for me both are the same, but I want to get into more of physical work, especially when I'm thinking a lot. Thinking becomes that habit. It's all about habit. दुनिया में लोग दुखी इसके लिए नहीं है कि दुख के कुछ कारण हैं, होंगे अपने अपने कारण हैं, बट मुझे जो लगता है, हर बार मैं कहता हूँ, वो यही है कि दुनिया में लोग दुखी इसके लिए क्योंकि उन्हें दुखी रहने की आदत हो गई है। ऐसा हमें सोचने की बहुत आदत हो गई, थिंकिंग बहुत आदत हो गई। स्पेशली जब हम किसी हादसे से गुजरते हैं तो वही थॉट बार बार आते हैं, रिपीटेड आते हैं, स्टीरियोटाइपिंग आते हैं, तो उससे हटना है। सो गेट एनग्रॉस्ड इनटू सम वर्ड। जैसे मेरे स्पिरिचुअल ट्रेनर ने मुझे कहा था कुछ साल पहले कि यार कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख लो। मैंने उससे पूछा कविता लिखूँ? कहते नहीं, पोएम तो आप लिख दो, लेकिन उसमें फिर सोचना पड़ेगा। ठीक है, सही है, दैट्स ओके, कभी मन किया तो करो, बट फिजिकल वर्क करो आप, राइट। मैंने कहा फिर मैं कुछ डांस वांस करता हूँ। हाँ, वो बढ़िया है, कहते हैं आप इफ़ यू लाइक डांस। तो मैंने कई डांस के वीडियोस बनाए हैं, म्यूजिकल वीडियोस बनाए हैं, या फिर जिम, वर्कआउट, वो फिजिकल। बट जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो वर्कआउट कर रहे हो, जब पैदल चल रहे हो तो पैदल चल रहे हो, ये सोच नहीं रहे हो। वो कहते हैं ना कि यार, कोई कहता है कि आप, वो मॉन्ग कहता है कि मैं जब खाना खाता हूँ तो खाना ही खाता हूँ, जब सोचता हूँ तो सोचता हूँ। दैट्स व्हाट। अब आम आदमी बोलता तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ, कहता ठीक है, जब आप खाना खा रहे होंगे तो उस बंदर के बारे में मत सोचना। जाहिर सी बात है, बंदर के बारे में आदमी ज़्यादा सोचता है ना। वो एक हमारी टेंडेंसी है ना। आपने कई बार सुना होगा कि दरवाजे में लिखा है कि यहाँ से झांकना मना है, तो मन वहीं जाएगा, है ना, झांक ही देखेगा। सो इट इज़ नॉट अबाउट पर्सन, इट्स अबाउट द माइंड विच वी नीड टू एम्पथाइज। आपका माइंड हो, मेरा माइंड हो, किसी का भी माइंड हो, जो कंडीशन माइंड है, जो इगोइक माइंड है, जिसमें कर्ता का भाव है, या उसको आदत लगी हुई है। कई बार जो सोशल स्टेटस है, वो जो जिनका जो सोचते हैं कि थोड़े सुपरिटी कॉम्प्लेक्स में, वो तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो ही जाता है ना। द पीपल हु फ्लावर विद दिस काइंड ऑफ पीस, तो नॉट नेसेसरी ऑल विल लाइक यू, ऑल विल लव यू, नहीं। हमने देखा है, हमने महसूस किया है, और हमने पढ़ा भी है कि जो बुद्ध पुरुष हुए, कोई जरूरी नहीं कि हर कोई उन्हें उतना ही चाहता था। कई लोग उनको देख कर ही, उनके नाम मात्र से ही डिस्टर्ब हो जाते थे। बिकॉज व्हेन यू मीट रियली ए प्योर पर्सन, आपके अंदर की जो इम्प्योरिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, आप तिलमिला जाते हो, आपको समझ में नहीं आता कैसे। कई बार आपने देखा हो कि जो सो कॉल्ड वेरी हाई फाई बंदा, मतलब सोशल स्टेटस उनका बहुत है, बहुत सो कॉल्ड रिच, सो कॉल्ड फाइनेंशियली रिच है, या आप बहुत ही पावरफुल पोजीशन में सो कॉल्ड, तो देखता है कि एक आम आदमी बहुत ज़्यादा खुश है, तो समझ नहीं आता उसको यार कि वो इतना खुश क्यों है। वो बेचारा शायद जेलस होता है या कुछ होता है, तो वो व्हाटएवर इट इज़, शायद अकेले में सोचता भी होगा कि यार काश मुझे भी वो शांति मिले जो इसको मिली पीस। बट व्हाटएवर इट इज़, मदर टेरेसा's that quote, that poem, that insight,
लव दैम एनीवेज, दे नीड द मोस्ट एंड डोंट डिस्टर्ब दैम, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हर किसी की अपनी एक यात्रा है, उनको डिस्टर्ब मत करो, उनके बारे में बुरा मत सोचो, मैं मत सोचो कि यार आपको वो लाइक कर रहे हैं नहीं कर रहे। आप बस बीज बोने का काम करो, आप बस शेयर करने का काम करो, किसी को क्लिक हो ना हो दैट्स ओके, दैट्स फाइन, क्योंकि आपने जो बोला है अस्तित्व में वो घूमेगा, राइट। वो जिसको चाहिए वो कभी ना कभी उसको क्लिक होगा, वो मिलेगा, नहीं मिला दैट्स फाइन, दैट्स ओके। आप अपना कर्म करो, दैट्स बीइंग अ ट्रू कर्म योगी। टेक केयर, थैंक यू फॉर योर काइंड पेशेंस एंड योर लव।